हुई है। MS स्वामीनाथन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं के बेहतरीन किस्म की फसल से की थी। तो ऐसा ही एक गाना मेरे देश की धरती लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे आ रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना है उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। तो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। દેશમાં ઈસવીસન 1970માં શ્વેત ક્રાંતિ આવી હતી અને આ શ્વેત ક્રાંતિ માત્ર ગુજરાત રાજ્ય જ નહીં, સમગ્ર ભારત દેશને શ્વેત ક્રાંતિના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં ઉન્નત અને ગૌરવવાન સ્થાન આપનાર ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો પણ તેમાં ખૂબ જ મોટો યોગદાન રહેલું છે। ખેડૂતો અને પશુપાલકો તેમજ મહિલાઓને પગભર કરી આગળ લાવવામાં શ્વેત ક્રાંતિ ખૂબ જ મોટો ફાળો રહેલો છે। શ્યામ બેનેગલ પ્રસ્તુત ફિલ્મ મંથનનું ગીત ધોરણ 7 અને 8ની ગર્લ્સ રજૂ કરી રહી છે। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना।
दिन न बीते ना ही रात, कोने कहूँ दिल की बात, मैं तो थाकी रे। ना मैं गैया धोवा जाऊं, ना मैं पानी भरवा जाऊं, ना मैं सुख चैन पाऊं, मारे घर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, हमारे घर अंगना ना भूलो ना। આજે હું તમને એક અજન્મેલી દીકરીની વ્યસા જણાવીશ. દીકરી એની માને કહે છે, માં, જો હું પુત્ર હોત તો તું મને ઉછેરી લેત, પછી મારામાં શું દોષ? શું તું મને દહેજને લીધે પ્રેમ નથી કરતી? નહીં નહીં, તું દહેજથી ડરીશ નહીં. આ બધી ભૂલ ભૂલામણી છે. થોડી કોશિશ તું કરજે, થોડી કોશિશ હું કરીશ. મોટી થઈને મારા પગ પર થઈ જઈશ, પછી દહેજે કોઈ મોટી વાત નહીં રહે, તેનો ડર નહીં રહે. જોજે માં, મારા હાથમાં પણ મહેંદી લાગશે, શરણાઈઓ વાગશે, અને તારા આંગણાનો એક પંખી બનીને હું ઉડી જઈશ. તું મને અત્યારથી ન ઉડાડ માં, હું તારો પ્રેમ ઈચ્છું છું માં. કોઈ પુત્ર માટે કોઈ માસૂમ પુત્રીનો બલિ આપવો એ કેટલી હદ સુધી યોગ્ય છે? આખરે મહાપાપ તારા અને તારા પુત્ર માથે જ જશે. નહીં નહીં, આવું ક્યારેય ન થવા દેતી માં. મારી પ્યારી માં, બસ હવે કૃપા કરી મને જન્મ લેવા દે. મને મારીશ નહીં, તારા આંગણાનું ગુલાબનું ફૂલ બનીને ખીલવા દે. મને કરમાવીશ નહીં, પરંતુ કોણ જાણે સ્ત્રીઓ યાજ પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જાતિ નીતિ નિયમો વલણો સામે હાર માનીને હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા છે, કે પછી પુરુષ બનવાની આંધળી દોટમાં સ્ત્રી પૂરતા હત્યામાં કઠોરતાનું કવચ ઓઢી લીધું છે. શું તેને પોતાની શક્તિ ઉપરથી ભરોસો ઉઠવા લાગ્યો છે? શું તેને પોતાની લાડકવાઈ બેટી ઉપર ભરોસો નથી? જો તેવું જ હોય તો ધિક્કાર છે નારી શક્તિને, ધિક્કાર છે હત્યા કરનાર માતાને અને તેમના માતૃતત્વને. કારણ કે હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ પણ સ્ત્રીની મંજૂરી કે ઈચ્છા વગર કોઈ પણ ડોક્ટર કે પુરુષની હિંમત છે કે તે તેમની કોકના હાથ પર લગાવી શકે. અરે દીકરી એ લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે. દીકરીની ઝગમગતી રોશની સામે લાખો સૂર્યની રોશની પણ ઝાંખી પડી જાય છે. આવું લાડકવાયું પાત્ર એટલે જ દીકરી. માતા એટલે વાત્સલ્યનું સ્વરૂપ, પત્ની એટલે પ્રેમનું ઝરણું, પરંતુ દીકરી એ વહાલનો દરિયો કહેવાય છે. દીકરી દાદા દાદી માતા પિતા ભાઈ દરેકને સ્નેહના બંધનથી બાંધે છે. એટલે જ દીકરીની વિદાય વેળાએ દરેકની આંખોમાંથી આંસુ વહે છે. દીકરી એટલે પિતાનો સંસાર, દીકરી એટલે માતાનો આધાર, દીકરી એટલે ભાઈનો પ્યાર. આવો ત્રિવેણી સંગમ સાર્થક કરે એટલે જ દીકરી. જો દીકરો એ પિતાનો રૂપ છે, પરંતુ દીકરી એ પિતાનું સ્વરૂપ છે. જો દીકરો એ પિતાનો હાથ છે, પરંતુ દીકરી એ પિતાનું હૈયું છે. દીકરી જરૂરી સમાજની મૂડી, દીકરી વિનાની જિંદગી અધૂરી. દીકરીનું સમાજમાં જાળવો માન, જાતિ જાળવા કદ પ્રસ્તુત कर रही है चॉम्स्की टीचर्स और जूनियर सीनियर की लड़कियां. में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोक में रोकी जाती है. उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती हैं. बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है. लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है. दोनों की किलकारियां, दोनों का बचपन, चंदा मामा से कहता है आजा मेरी आंगन
करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का चलोड़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां बेटियां बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। Women are most important section in our society and equally participate in the life existence on the earth. The crime against women are increasing day by day. So it is very necessary to save girl child in order to maintain the women in India. Ladies and gentlemen, get ready for performance by girls of standard 11th. हैं बेटियां, आंगन की तुलसी बन घर को महकाती हैं बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन से गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज़, जो करहा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार। मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में लेने दो आकार। अरे सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी। क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? लाओ डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को यहीं फेंक देते। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया। किस लिए आदर्श है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब
खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से